Very good morning, students of class 10th. Here I am Poonam Prasad. Again, I am taking the very important chapter of your political science, and that is your political parties, children. In this chapter, हम लोगों ने पहले syllabus पे एक थोड़ा सा brief, let's we talk on the a brief of your political parties. There are only the four chapters. One is your power sharing, second is your federalism, the next is your sixth one is your political parties, and seventh is your outcomes of Indian democracy, outcomes of democracy, right? With perspective to India. So, children, if we are talking about the completion of the syllabus in terms of political parties, in terms of political science, so we have already completed the two, that is power sharing and federalism. ठीक है बेटा? Then kindly revise it out. अब हम बात कर रहे हैं about the political parties की, that is important chapter of political science. It is called as political parties, जिसको हम लोग कहते हैं राजनीतिक दल. Students, let's we talk on the chapter at a glance. Students, we have a meaning of the political parties. राजनीतिक दल क्या होते हैं, what is the, have you defined, why, how do we define the political parties, ये political parties actually में होते क्या हैं. Then components of political parties, actually political parties के components हैं, that is your leaders, active members and followers. हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको explain करेंगे with examples. Then functions and role of political parties. Children, functions and role of political parties, that is political parties played a very very important role in the democracy. और इसके जो functions हैं, political parties क्या करता है, उसका कार्यान्वयन क्या है, या वो किस तरीके से कार्यों को करता है. इट मीन्स whatsoever the deeds, or you can say the functions, are performed by the political parties, that has to be mentioned in this particular topic. Then political parties and representative democracy. Children, political parties are synonyms to the representative democracy, क्योंकि democracy का मतलब ही होता है people's participation. People's participation in the form of representative. वो representative किससे belong कर रहा है, हमें उस किसको वोट देना है, क्या सिम्बलाइज्ड है, वो कैंडिडेट ऑथेंटिक है या नहीं, ये अल्टीमेटली लीड करता है टुवर्ड्स द पॉलिटिकल पार्टीज. तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज आर सिनोनिम्स टू द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, एंड वी हैव टू गो थ्रू विद द two important aspects of political parties and representative democracy. How do they coordinate with each other? Fine. Then the number of the political parties we have, that इंडिया में कितने पार्टीज़ हैं, नेशनल और स्टेट लेवल की पार्टीज़ कौन कौन सी हैं. देन वी कम्स टू चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़. बेटा, चैलेंजेस इट मीन्स चुनौतियाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको किस तरीके की प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस, चुनौतियों से जूझना पड़ता है. अगर चुनौती हैं तो रिफॉर्म्स भी होंगे, सोल्यूशंस, प्रॉब्लम्स हैं तो सोल्यूशंस भी होंगे. तो सजेशंस टू बी टू हैव अ पॉलिटिकल सिनेरियो इन द टर्म्स ऑफ इट्स रिफॉर्म, हम कह सकते हैं चेंजेस. देन डिस्कशंस ऑन वेरियस पार्टीज आइडियोलॉजीज. दिस इज़ ट्रू बेटा, बहुत सारे नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं, वो उनके प्रिंसिपल्स क्या है, वो किस प्रिंसिपल्स पे उनका गठन हुआ, या किस प्रिंसिपल पे बेटा वो प्रेजेंट हुई, या उनका बर्थ हुआ. लेट्स वी टॉक ऑन दैट इन द टॉपिक. Then definitions of various terms. This is quite important. हम लोग definitions पढ़ेंगे. Now the first topic is your introduction of the topic, that is the political parties. ये पहला हमारा introductory part है. Students, मैंने example दिया था आपको power sharing में भी, कि जो भीड़ है, it means the crowd, never be a leader. The crowd never be able to solve the problems of the people. The crowd never able to listen the problems of the people. अगर मैंने कहा मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, मैंने अपने पड़ोस में बोला कि क्या आपके घर में पानी आ रहा है, उन्होंने भी कहा नहीं, हम ये प्रॉब्लम किसके लेकर जाएंगे. हमने भीड़ इकट्ठा की, भीड़ डिस्कशन कर रहा है रिगार्डिंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई इन अ लोकेलिटी, बट अल्टीमेटली व्हाट शुड वी डू.
हम लोग क्या कहेंगे, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, हमारी प्रॉब्लम वहीं के वहीं रहेगी। लेकिन उसी में अगर एक व्यक्ति ने कहा कि लेट्स वी हैव टू टॉक दिस टू आर रिप्रेजेंट, लेट्स वी टॉक और टू लेट्स वी हैव टू हैंडल दिस प्रॉब्लम इन इफेक्टिव वे, उसने इफेक्टिवली उस काम को किया और अल्टीमेटली वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन गया। यानी कि मैंने एक एग्जांपल और आपको देना चाहती हूँ कि आपकी आपकी क्लास है, आपकी क्लास में प्रॉब्लम्स हैं, आप अपनी क्लास में मॉनिटर नहीं हैं, आपने अपनी प्रॉब्लम को ले जाके प्रिंसिपल सर के पास गए, प्रिंसिपल सर ने क्लास अपने कमरे में भीड़ देखी, उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा आप लोग बाहर चले जाइए। आप में से कोई एक ही व्यक्ति आके अपनी प्रॉब्लम मेरे को बताएगा। इट मीन्स देयर इज़ अ वन पर्सन हु इज़ गोइंग टू हैंडल आउट द प्रॉब्लम्स, वो लेकर आएंगे अपनी प्रॉब्लम, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा, या हम क्लास टर्म में बात करें तो क्लास मॉनिटर, है ना। तो क्लास मॉनिटर इज़ कॉल्ड एज योर रिप्रेजेंटेटिव। तो उसी तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ग्रीवेंसेस हैं, हमारे वेलफेयर के बारे में हमारा रिप्रेजेंटेटिव सोचता है, यही रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं, यही रिप्रेजेंटेटिव्स। पर ये रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, उनका आधार क्या है, हम जिसे चुन रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं, ये कई सवाल हमारे मन में आते हैं। और अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज़ नाम उभर कर आता है, ठीक है। तो ये राजनीतिक दल, ये दल बनाए जाते हैं, ठीक है, यानी ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं, लेट्स वी टॉक ऑन द फर्दर। द basically political parties are played very very pivotal role in the expansion of democracy। अगर हम डेमोक्रेसी के फैलाव की बात करें, अगर हम इसके डीपनिंग की बात करें, अगर हम इसकी बात करें कि डेमोक्रेसी का आधार बेस क्या है, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ है। तो ये गलत नहीं होगा। इट्स रोल डिफाइन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मेकिंग, क्योंकि कई बार इसको एज अ सिनोनिम भी कहा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, और मेकिंग गवर्नमेंट and its presence is ultimately strengthening the democracy। और यही पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट बनाकर हमारे डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया है चिल्ड्रन, दिस इज अबाउट द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज इज अल्टीमेटली हु, पॉलिटिकल पार्टीज is a group of people who share the same ideas about the way the country should be governed। This is quite important। हम लोग ग्रुप कब फॉर्म करते हैं, जब हमारी सोच, हमारी समझ, दैट वी आर शेयरिंग द सेम सेट ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स, है ना, तभी हम लोग ग्रुप फॉर्म होते हैं। हम उस ग्रुप में जाना पसंद नहीं करते जहाँ पे हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे मतों को नहीं माना जा रहा है, या हमारे दिए गए सजेशंस को नहीं माना जा रहा है, या वो हम लोगों उनके आइडियाज़ मेरे आइडियाज़ से मैच नहीं खाते, तो हम उस ग्रुप में जाते ही नहीं हैं। हम कौन से ग्रुप में, जहाँ हमारी आइडियोलॉजीज़, हमारे सिद्धांत एक जैसे दिखते हों, मिलते हों, हमारे आइडियाज़, हमारी फीलिंग्स एक जैसे हों, तो दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि सेम आइडियाज़, दे कैन शेयर द सेम आइडियाज़, बट किस लिए, कि कंट्री कैसे चले, यानी कि कंट्री सुचारू रूप से चलना चाहिए, लेकिन हु इज़ गोइंग टू गवर्न द कंट्री। दे वर्क टुगेदर टू इंट्रोड्यूस न्यू लॉज, अल्टर द ओल्डर वन। अगर ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो ये नए लॉज लाते हैं और पुराने लॉज को वो ऑल्टरिंग करते हैं, यानी कि उसको चेंजेस करते हैं, अमेंडमेंट्स करते हैं। इट मीन्स दे आर द लॉ मेकिंग गवर्निंग बॉडी। ये मैं फंक्शंस में बताऊंगी आपको लेटर ऑन। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू कंट्रोल व्हाट हैपन्स इन पार्लियामेंट by securing the majority seats it makes policies like right to education, right to information act, etc. Children, political parties का काम है इलेक्शंस लड़ना, इलेक्शंस में जीतना, गवर्नमेंट बनाना, लॉज बनाना। अगर जीत नहीं सकते, ऑपोजिशन पार्टी में रह के रनिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, और इसी तरीके से प्रॉपर पावर शेयरिंग होती है। यानी कि जो रनिंग गवर्नमेंट वो ऑटोक्रेटिक ना हो सके, इसके लिए ऑपोजिशन पार्टीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये ऑपोजिशन पार्टीज़ अपने में ही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। देन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़,
बेटा, आज के टॉपिक जो लास्ट टॉपिक आज का है, there are children, the political parties is known by its policies, stands for the supporters who interest it upholds. बेसिकली वो जो भी पॉलिसीज़ बनाती हैं, दैट पॉलिसीज़ हैज़ टू बी सपोर्ट. और कौन कौन करता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ के 3 important components in children. One is called as the leader, who leads the party. For example, in present scenario in BJP, Amit Shah and Narendra Modi ji is going to lead over the party, है ना? Then active members, Rajnath Singh. These are the active members. Followers, it means who followed. बेसिकली एक बात को ध्यान दीजिएगा, जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं दे आर सपोर्ट देयर लीडर्स इन मेकिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. फाइन. और जो सपोर्टर, जो फॉलोवर्स होते हैं, दे आर सिंपली द एडरेंट फॉलोवर्स ऑफ द लीडर्स एंड वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्टिव मेंबर्स चिल्ड्रन. और एक्टिव मेंबर्स जैसे they are the one who climb a ladder for being a follower and become assistants of the leaders to gain knowledge about the political scenario. और धीरे धीरे यही लोग आगे चलकर एक्टिव फॉलोवर्स एक्टिव मेंबर्स बनते हैं, यही एक्टिव मेंबर्स लीडर्स बनते हैं, है ना? सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. बेटा, इसी में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है. डिफाइन पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट. बेटा 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स का आपका पॉलिटिकल पार्टीज बन गया. इट मीन्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने रेडी है. सो आपके कई बार प्रॉब्लम से क्वेश्चन रहा है, बोर्ड में भी पूछा गया है. तो आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है about the definition of the political parties along with the components of the political parties. You have to go with, you have to define it with the examples. Children, in tomorrow's class I would like to take your functions properly. मैं functions लूँगी बेटा, और functions के बाद एक और टॉपिक लेना चाहूँगी, दैट इसकी नेसेसिटी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेसेसिटी आपके डेमोक्रेसी में. Is that clear, children? By then, take care. Good day.